آپ کی آواز نہیں آ رہی. مولانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی کیونکہ وہ ہینڈ فری اتار لیں آپ، پھر آپ نے ہینڈ وہ بند فری. کر دیا. وہ کیمرہ کھول لیں. بول ہی نہیں رہے، وہ بولیں گے تو آئے گی نا، وہ تو ہینڈ خاموش. فری اتار لی ہے، بول رہے ہیں نا بھائی یہ. کہ ہاں جی کیمرہ ہاں جی. کھولیں، ڈی پی پہ کلک کریں، کیمرہ کھولیں، آئی ڈی بین ہو جانی، دوبارہ پیچھے چلے جائیں گے آپ. کیمرہ کھول لیں، وہ ڈی پی پہ کلک کریں، کیمرہ کھولنے کے بعد وہ سیو پہ کلک کر دیں. یار دوبارہ بتائیں. میں نے کہا ڈی پی پہ کلک کرنے کے بعد نا کیمرہ کھول لیں اپنا، کیمرہ کلک کرنے کے بعد سیو پہ کلک کر دیں تاکہ آئی ڈی بین نہ ہو. یہ اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب جی اب ٹھیک ہے، ٹھیک. ابھی کریں اب بات، ٹھیک. ابھی کریں بات، شروع جی کریں مولوی بات. صاحب میری آواز صحیح آ رہی ہے مانی بھائی؟ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، ذرا ہیڈ فون لگانے دینا، آواز صاف آئے گی آپ کو بھی مجھے بھی. مانی بھائی میری آواز صاف آ رہی ہے؟ کم آپ تو کی نہیں؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے میری بس. آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ آپ جی کی جی بسم اللہ زبردست آ بسم رہی ہے اللہ. جی. بسم اللہ جی بسم ٹھیک اللہ. ہو جی گیا. سر. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام طلت ہے اور میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، جماعت احمدیہ مسلمہ سے. آپ بھی اپنا ٹھیک. تعارف ذرا پلیز تھوڑا سا کرا دیں. میں محمد ابوبکر ہوں، گجرات سے. ماشاء اللہ. جی جی. اہل سنت والجماع جی جی جماعت. بریلوی. ٹھیک ہے. تو جی سر یہ آپ کا دوست آتا ہوتا ہے، یہ اکثر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ چلے گئے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کب سے ہے اور یہ کیا اصل میں عقیدہ ہے اور کیا اس کی روٹ ورڈز کیا ہیں، کہاں سے یہ عقیدہ آیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جیسے ابھی کا نا آیت مبارکہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن روفیہ. استغفر اللہ. یہ کون سی آیت ہے جی؟ ولیکن میں رفیع. میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، 2 منٹ ویٹ رکھیں. ولیکن رفیع آپ نے کہا ہے، روک لیں. جی جی. اچھا جی تھوڑا سا اس کو ذرا یار ڈبل ٹیپ تو کرو، تھوڑا شیئر کر دو. مولوی صاحب آئے ہیں ان کی خوشی میں، ذرا کافی دنوں کے بعد ہم ایک چھوٹا سا مناظرہ رکھا ہے، تو ذرا تھوڑا کائنڈلی تعاون کریں. کوئی دوست غیر احمدی کے نیچے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی بلا لیں اوپر، ایک آدھے چلیں. اب بابا جی آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جائیں آ کے. میری ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، یہ مولوی نہیں میرے نہیں ٹائپ کا میں ہے، آپ کا آپ چھوٹا کے بھائی مقابل کا نہیں ہے. یہ میں نیچے بیٹھا سن رہا ہوں، نہ کرے یار. یہ میرے علم کا ہے. نہیں نہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے. نہیں نہیں، جتنا علم اس کے پاس اتنا میرے پاس ہے، ماشاءاللہ. مجھے بلا لینا. جی تھوڑا جی سا اس لاما کو نا صاحب وہ کوئی بات. بیگ چلے گئے، لاما صاحب سامنے آ جائیں، وہ وہ آیت پیچھے دیکھ گھس رہے جائیں ہیں، گے آپ. آیت دیکھ رہے ہیں بھائی، آیت دیکھ رہے ہیں. کوئی نہیں، آرام سے اصل کریں. میں مجھے نا اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں تھوڑا ہو جائے گا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں علامہ صاحب، آپ آرام سے کریں، بہترین آرام سے. آپ ایزیلی ہو جائے، ایزی ہو یہ جائے، کوئی لڑائی نہیں ہے. آیت مبارکہ سامنے رہنا یار، اسکرین کو سامنے رکھیں محترم علامہ صاحب. اسکرین کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر میرے بات. پاس آیات ہے نا، جو یہ میرے موبائل میں ہے، تو مجھے پیچھے جانا پڑتا ہے ادھر اچھا جی. دیکھنے کے لیے. جی جی. کیا ہے آیات، ہاں تھوڑا سا بتا دیں کون سی آیت ہے؟ آل عمران کی. جی. جی. وہ اس طرح کیسے ہوگا؟ کوئی ہے نہیں دوسرا ڈیوائس، دوسری نہیں ہے؟ کیوں جی احمد صاحب دوسری ڈیوائس نہیں ہے؟ احمد صاحب نہیں میرے پاس تو نہیں ہے ڈیوائس، وہ نہیں بھائی، وہ ان کی وہ آیت کا ان کے پاس ہوگی. آیت جو پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب، وہ کیونکہ پیچھے ان کو بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں آواز نہیں پھر آتی، مائک میوٹ کر لیا انہوں نے. جی علامہ صاحب آپ جب جاتے ہیں نا پیچھے تو آپ کی آواز نہیں آتی ہے. میں یار لیپ ٹاپ اوپر رکھا علامہ ہے، صاحب پھر یوٹیوب پہ بھی چلا لیتا ہے اس کو. میوٹ بھی ہے، وہ مولانا صاحب کی آیت آئی نمبر ڈی بتا میوٹ دیں ہے. یار، کیا ادھر ہو رہا ہے ابھی. علامہ کوئی بات صاحب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، پیچھے چلے گئے آپ. یار کوئی بات نہیں احمد میں بھائی. وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی یہ پہلی دفعہ یہ لائیو آیا ہوں، تو مجھے اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں اچھا میں صرف آپ آیت کو دیکھنے تھوڑا گیا سا تھا. ہاں جی گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ ہاں جی جب ہاں جی اسکرین کو سائڈ پہ کریں گے نا مولوی صاحب، تو وہ پھر ہاں جی. آپ کی آواز ہمیں نہیں آئے گی، کپ لگ جاتا ہے چائے کا. اچھا ایک منٹ ابھی رکے، تو میں بھی آپ کو وہ آیت بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی بتا دیں بتا دیں. علامہ صاحب آپ ان کو وہ بتا دیں نا، آیت نہیں نمبر بھائی بتا دیں آپ تاکہ ایک وہ بندہ دیکھ لیں بات گے. کرے نا، دو بندے باتیں کریں گے ہمارے ساتھ یار. تڑیاں تو پہلے بہت لگا رہے تھے.
हमारा नहीं आ एक रहा ना बात कर रहा है, आप ही एक बंदा करो यार। नहीं तो मौलवी साहब पहले आप जरा ठीक से सीख कर आ जाएं, इधर हम काकड़ कुछ भैया बात कर ऐसे रहे थे। हेलो ऐसे हेलो कोई काकड़ साहब ऐसे मत काकड़ भाई बोलो। कोई बात भाई ये देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप ही जो है ना ऐसी बात ना करें कि आप भी प्रॉपर आलिम नहीं है, कुछ ना कुछ कमी कोताही हर बंदे में कोई होती है, बात नहीं इंसान है, काकड़ गलतियां भाई, हो जाती मैं हैं। आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं होस्ट हूँ। ये काकड़ भाई जो है अहले सुन्नत से ही, ये भी आपके अहले सुन्नत के ही है, अहले सुन्नत के आलिम है ये भी, माशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं यार, देखिए सीखने सिखाने के लिए, हमने कुछ जीतना नहीं है उनसे, हमारी तो कभी इधर ये आलिम नहीं है, स्टूडेंट हैं, आपसे भी नहीं सीखते ये हैं, भाई बड़ों से काकर भी साहब, सीखते हैं। ये काकर साहब ये आलिम साहब हैं, असल में इनको मसला हो रहा है, लाइव पे पहली बार आए होंगे, इनसे मेरी कोई बात बात नहीं, कह रहे यार, आलिम कोई साहब हैं। ऐसा प्रॉब्लम नहीं यार, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम आयत पढ़ देंगे, अगर वो हमें हुक्म करे हम पढ़ देते हैं, कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं। सूरतुन निसा आयत नंबर 157। बेशक ऐसे जी। तो क्या है मौलवी साहब? मैं फिर पीछे जाना पड़ेगा, फिर माइक बंद हो जाएगा। आप पढ़ दें, आपने भी कहा कि मैं पढ़ दूंगा। वमा वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू लफी शक्क मिन्हु, ये वाली जी 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 जी। तो क्या तर्जुमा कर लेंगे आप? जी जी करेंगे। अच्छा, असल में ना मैं आपको इसमें थोड़ा सा शुरू से बता देता हूँ, ये अच्छा, जहाँ आप से मैं एक आयत आपसे, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक जो ये आपके गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं, ये ही जो है ना वो मसीह हैं या ये इमाम महदी हैं? मैं ना आपको इसका ज़रूर बता दूंगा, पहले बता देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं, इनको हम मसीह माऊद भी मानते हैं और महदी माऊद भी मानते हैं, दोनों मानते हैं, क्योंकि प्यारे आका सैयदना एक मोहम्मद मैं अब पेंसिल लेके आया। जगह बदल ली, जगह बदल ली। ठीक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वजूद को नबी भी फरमाया, और फरमाया वो इमामन महदीयन भी होगा, वो मसीह इमाम इब्न महदी मरियम भी होगा, ठीक होगा। वो मसीह इब्न मरियम भी होगा, और मसीह इब्न वो आदिल हुक्मरान भी होगा। ये चार मेन टाइटल हैं जो दिए। तो ये आदिल हम हुक्मरान भी होगा, ठीक है। ये चारों हम ना मिर्ज़ा साहब के वजूद में मानते हैं। अच्छा, ये आदिल हुक्मरान किस तरह? ये आदिल हुक्मरान, अच्छा ये हुक्मरान किस तरह होगा कि ये पूरी इनके पास कोई सल्तनत होगी या किसी सल्तनत की तरफदारी करेंगे, या इनका कोई गांव होगा, कोई देहात होगा, कोई कस्बा होगा? इसके वाले से बता दें। जिस तरह पहले अंबिया गुजरे हैं ना, ये मैं आपको आखिरी चलें जवाब दे देता हूँ, असल में आप देने आए थे, लेकिन चलें आप तशरीफ लाए हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ इसका भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्मरान आपने कहा है ना, तब हुक्मरान के लिए हुकूमत होना ज़रूरी है और हुकूमत के लिए सल्तनत का होना लाजिम है, बगैर सल्तनत के कोई हुक्मरान नहीं है, सही है? अच्छा जी, ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक उनसे है। इनसे ही हम समझ लेते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हैं कि वो आदिल हुक्मरान थे, उनके दौर में आदिल हुक्मरान कौन था? ज़ाहिर हुजूर के ज़माने में तो हुजूर ही थे। इसका क्या मतलब हुआ मौलवी साहब कि अब जब इसका मतलब हुआ, देखिए देखिए देखिए, आराम से जोग्राफी के पास भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपने मदीना में हुकूमत तैयार की थी। अब मदीना से मक्का 2 शहरों पर आपकी हुकूमत थी, फिर खैबर फतह हुआ, हुनैन फतह हुआ, दीगर इलाके फतह हुए, उन पर आप हुकूमत फरमाते थे, और जो आपके नीचे काफिर थे रहते थे, आप उनसे जिजिया भी लेते थे। अब यहाँ पर आपने कहा कि वो आदिल हुक्मरान होंगे, जो ना मसीह मऊद आदिल हुक्मरान होंगे, तो ये आदिल, आपने कहा कि ये आदिल हुक्मरान की सिफ्त मिर्ज़ा साहब में पाई जाती है, तो वो हुक्मरानी कहाँ पर थी, कौन से इलाके पर थी? बरसगीर पाक व हिंद के कौन से इलाके पर थी, मुझे बता दीजिए। अच्छा, एक तो मैंने आपको आदिल हुक्मरान मैंने नहीं कहा, ये तो रसूल पाक भाई खुदा की कसम, खुदा की कसम, आपने कहा है कि आदिल हुक्मरान होंगे इमाम महदी, और ये चारों सिफात जो है ना वो उसमें पाई जाती है। मैं बड़े आराम से आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी अधूरी बात, छोटी सी बात को होने नहीं दे रहे। अगर भाई मेरी बात सुने ना, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। मैंने आपको ना लिखे, आप देखिए मेरी बात सुने, हमारा मकसद जो है ना, हमारा मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और सच्चे दीन को लोगों के लिए आसान बनाना। ठीक हो गया, यही मकसद है मेरा और आपका, ऐसा ही है। अब थोड़ा सा ऐसा ही जब है। तक
تو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ حدیث پاک میں مسیح موعود کے لیے مختلف ٹائٹل استعمال ہوئے ہیں، مسیح بھی استعمال ہوا ہے، ابن مریم بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ عادل حکمران بھی ہوں گے، اور آپ نے کہا یہ چاروں چیزیں یہ مرزا غلام محمد قادیانی میں یہ پائی جاتی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عادل حکمران، تو وہ عادل حکمران کس علاقے کے تھے، یہ مجھے بتا دیں۔ جی ابھی تھوڑا سا مجھے آپ سنیں گے یا رٹالائزیشن از دا بیسٹ فاؤنڈیشن؟ دیکھیں میں بڑے پیار سے بڑے طریقے سے آپ کے ساتھ بڑے اطمینان سے آپ نے دیکھیں نا، آپ نے بات کا انکار کیا، مولوی صاحب مجھے جواب کب دینا ہے؟ میں نے ایک منٹ ذرا رکیں، ذرا ایک سیکنڈ ذرا، پھر مجھے نا اس طرح کرنے کو ایک سیکنڈ ذرا مجھے تھوڑا سا، میں تو آپ کو پہلے اس میں آئل میں بھی شروع کیا، آپ نے جناب جو ہے نا اب آگے سے اس طرح کرنا شروع کر دیا، تو ایک منٹ رکیں ذرا، ایک منٹ ذرا مجھے بھی تھوڑا سا پھر۔ اچھا آپ یہ مانتے، آپ نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے جو مرضی آپ جواب دیں، لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ جو حکمرانی والی ہے وہ عادل حکمران ہوں گے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، یہ آپ پر ادھار ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں ادھار نہیں ہے، ادھار نہیں ہے، اس کو میں ابھی چکاتا ہوں۔ اب میری آواز صحیح آ رہی؟ میں ابھی چکاتا ہوں سر، اس طرح نہیں بات ہوگی، ایسے بات نہیں ہوگی۔ صحیح یہ جو بھائی لگا لے وہ ایک بات، آواز آئی میری بانی بھائی؟ آواز میری صحیح آ رہی؟ ایک بات پر کنفرم کر لیں کہ آپ نے عادل حکمران کہا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے، میں نے یہ 100% کہا ہے، میں نے یہ 2000% کہا ہے، یہ میرے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ لاکھوں دفعہ کہا ہے میں نے، اور میں اس پر قائم ہوں۔ غلام محمد قادیانی میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ یار یہ دوسرے بندے کو کیوں کر رہے ہو؟ اچھا مولوی صاحب میری بات سنیں، ابھی عادل حکمران والی جو بات ہے، میں نے آپ سے جب پوچھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون تھا عادل حکمران، تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ پھر آپ نے بعد میں جو 13 سال کے بعد آپ کی جو فتوحات شروع ہوئیں وہ آپ نے بیان کرنی شروع کر دی۔ 13 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے جو بزرگان تھے انہوں نے وہاں پر تکالیف پہنچائیں، شیب ابی طالب میں آپ کو رہنا پڑا، وہ سارے واقعات ہوئے۔ اگر میں آپ سے ابھی پوچھ لوں حضرت عیسیٰ بھی عادل حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ ایک منٹ مجھے لکھنے دینا، میں ساتھ لکھ لو۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ، ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات پوری سنی، آپ نے کہا ہے کہ آپ کے بزرگان نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا ہے ابھی؟ کفار مکہ، ہاں جی بالکل کہا ہے میں نے۔ بھائی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے بزرگان نے، مجھے بتائیں کہ ہمارے بزرگان کون سے تھے وہاں پر؟ میں کفار مکہ، ٹھیک ہے میں مغل ہوں، ٹھیک، وہ میرے بزرگان کس طرح ہو گئے؟ بزرگ کیا ہوتا ہے؟ بزرگ باپ دادا ہوتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، میرے سے سن لیں۔ دیکھیں آپ اس وقت مرزا صاحب کے متعلق وہی خیالات رکھتے ہیں جو اس دور میں کفار مکہ سیدنا محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے، یا یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھتے تھے۔ آپ کے خیالات مرزا صاحب کے لیے سیم وہی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ الکفر ملۃ واحدہ، جو کافر ہوتے ہیں ان کی ایک ہی جماعت ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے رشتہ دار کہے۔ اب آئے ٹو دا پوائنٹ، آپ ہمارے پاس کیوں تشریف لائے؟ اس لیے لائے، احمد آپ کو لے کر آیا۔ سنیں نا مولوی صاحب، مجھے بھی تھوڑا بولنے دینا، ایسے تو آپ ہی بول کے چلے جاؤ گے تو میں منہ پر مار دیں، ایک دلیل میرے منہ پر مار دیں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جنہوں نے میرے پاک رسول کو مکے میں ستایا تھا وہ میرے محمد ابو بکر کے، محمد غلام باقر کے جو ہے نا وہ بزرگان تھے؟ اس بات کی سر میں نے جو آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے میرے بزرگان پر تہمت لگائی، آپ نے میرے بزرگان کو نبی کا دشمن بتایا، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کون سی بات ہے؟ کس کتاب سے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے بات کہ وہ جو کفار مکہ تھے ان کے جو خیالات تھے آپ کے سیم وہی خیالات ہیں۔ او بھائی میرے بزرگان کدھر ہیں؟ میرے باپ دادا نے کدھر نبی پاک کو تکلیف دی؟ آپ کے باپ دادا کیا تھے حضور کے زمانے میں؟ آپ کی نسلیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں ساری، حضور کے زمانہ میں آپ کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ عام برصغیر کے رہنے والے ہیں، تو ہم نے مکے میں جا کر ان کو کیسے اجازت دے دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ اچھا مولوی صاحب، آپ نے کہا کہ میرے باپ دادا نے ان کو تکلیف دیا، یہ بات آپ نے کہاں سے کی ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ جی میں بتا دیتا ہوں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، نمبر اور صفحہ نمبر چاہیے، کتاب کا نہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ یہ باتیں کتابوں کی نہیں ہیں، کتابوں کی باتیں آپ بھی نہیں کر رہے، آپ بھی کہانی شریف ہی بیان کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب میری بات سنیں،
देखिए अच्छा मेरे बात तो अबाव सुने। वो तो आपने क्यों अच्छा बगान बांधा? यार रट्टा आपने लगा क्यों लिया। बांधा? अच्छा ये मौलवी बात सुने। साहब अच्छा ठीक है एक बात मेरी बात सुने। मेरे अच्छा बाप सुनाए। दादा ने अगर नबी पाक को तकलीफ दी थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाप दादा कहाँ थे? उन्होंने दिफा क्यों नहीं किया? हाँ जी किया था, मैं यही तो बता रहा हूँ किधर कि थे? मेरे जो नाम क्या सहाबा। है उस किताब? वो कौन सी किताब और अच्छी यार है? रुक तो जाओ मौलवी साहब, क्या हो गया आपको? भाई अच्छा देखे आप सहाबा जो थे, सहाबा। बिला वजह किसी के अच्छा बाप रुके दादा पर रुके ना मौलवी साहब, वो जवाब देता हूँ ना, मैं इसका जवाब देता हूँ, जवाब भी तो लो ना, एक जगह बैठ जाओ मौलवी जवाब साहब। मुझे किताब से चाहिए। अच्छा जवाब मुझे किताब से बताएं चाहिए। कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमीन हमारे कुछ नहीं लगते? नहीं आपने मुझे किताब का नाम बताना है, बस मुझे नहीं पता। यार मुझे नहीं, मैंने कहा ये किसी किताब में लिखी है बात। भाई आप कह भी नहीं सकते, आप कह भी नहीं सकते। अगर सच्चे होते तो बताओ। हाँ मैंने कहाँ से तजजिया किया है इस बात का, वो मैं बता देता भाई हूँ भाई आप को। हमें तजजिया नहीं चाहिए, हमें सियासत से दलील चाहिए। हमें अपने अच्छा तजजिया मैंने मौलवी साहब ये बात कही है, मैंने मौलवी साहब आपने मेरे बुजुर्गान पर तोहमत लगाई है कि वो नबी पाक के क्या नाम थे, वो उनको ईसाई। मैं बता देता हूँ, इसका जवाब तो ले लें, फिर इसका जवाब ले लेना मेरे से सर, इसका जवाब ले लें। मैंने हाँ मेरे से लेना, मेरे से सर। मैंने ये कोई कहा है कि ये ऐसी बात कुरान में लिखी है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या ये सियासत में लिखी है? हाँ सुने ना अब। नहीं आप कह सकते हैं अहमद भाई एक मिनट जरा, एक मिनट अहमद भाई, आपकी हिम्मत है, अहमद भाई जवाब दे दे। एक मिनट जरा, एक मिनट, जो बंदा आपको लेकर आया ना, जरा उससे पहले बात कर ले। आप तो छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं सर, अब दलील की तरफ तो आ ही नहीं रहे। अहमद साहब, अहमद जी मेरे भाई जी अहमद साहब, आप जो मौलवी साहब को म्यूट किसने किया यार, उनका माइक? मौलवी साहब को आप लाए हो, किस वजह से लाए हो? मैं माइक म्यूट में करूंगा। मैंने तो नहीं किया भाई, किसी और ने किया है, मौलवी साहब ने खुद कर लिया शायद। क्यों लाए हो? आपकी भाई हाँ जी अहमद बोलो यार, अब कि मौलवी साहब को आप लाए हो हयात मसीह का अकीदा साबित करने के लिए, जो आपका है कि नहीं है, कि इनकार करते हो अहमद? लेकिन आपने तोहमत लगाई है मेरे अबाव अजदाद पर, मुझे उसका जवाब चाहिए। वो कौन सी किताब में लिखा हुआ है? हाँ, मैं मौलवी साहब मेरी बात सुने, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जो मेरे अबाव अजदाद पर तोहमत लगाई है, उसका सबूत किसी कुरान और हदीस से दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत भी यहूद की सिफात इख्तियार कर जाएगी, जैसे एक जूती दूसरी जूती की तरह। सुन ले यार, अब सुन तो लो भाई, सुन भी लो ना, हदीस आ गई है, अब थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखो भाई। हम मेरी भी बात सुननी, मैंने जवाब देना है आपको। जब आप जवाब नहीं लेोगे तो फिर बात कैसे होगी यार आगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जो लोग होंगे आखिरी जमाना में, वो इस तरह हो जाएंगे जैसे यहूद बालिश्त की तरह होती है, और हर तरह से वो बराबर हो जाएंगे। अब यहूद आपके बड़े थे, मुझे बताओ, आपके बड़े यहूद थे? हजूर तो ये फरमा रहे हैं। अब बताओ, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहोगे? इसमें कहां पर लिखा है कि मेरे अबाव अजदाद ने नबी सर ये तमसीली तौर पर तमसीली, आप तमसील पास रखें। आप मुझे बस सराहतन वो अल्फाज बता दें कि जिसमें मेरे अबाव अजदाद ने नबी पाक को तकलीफ दिया, और मेरे अबाव अजदाद का उस वक्त मजहब क्या था, उनकी उम्र क्या थी, उनका नाम क्या था, उनका कबीला क्या था, ये भी बता दें आप। ठीक है, जिस तरह मैं आपको आखिरी दफा इसका बता देता हूं, जिस तरह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, मुझे ऑथेंटिक दलील, आपकी तबसरा नहीं चाहिए, जाती राय है ना। यार मेरी बात सुने मौलवी साहब, जिस काम से आप आए हो, मौलवी साहब जिस काम के लिए आप आए हो, देखे मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा हरामी हो ना, उसके सामने उसके अबाव अजदाद की तजलील करे तो वो सुन लेगा, लेकिन हराली कभी भी अपने अबाव अजदाद पर हर्फ नहीं आने देगा। अच्छा क्या चले, अगर तो मौलवी साहब मेरी बात सुने, मैंने अच्छा सुन, जवाब देना मुझे, मैंने जो बात की है, सवाल गंदम जवाब चना होता है, फिर तो बोलना पड़ेगा ना भाई। सर मैं मौलवी साहब मुझे बोलने तो दें, आप बोलने भी नहीं दे रहे ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने जो आपको जवाब दिया है वो तमसीली रंग में, जैसे कि सैयदना मोहम्मद अरबी नहीं चाहिए, तमसील नहीं चाहिए हमको, तमसील हाँ नहीं ठीक हो गया। फिर क्या चाहते हैं आप? अब भाई आप मुझे मेरे मुंह पर एक छोटा सा हवाला मार दें कि वो मैंने ये कहा ही नहीं कि किसी हवाले में लिखी है ऐसी बात। भाई आप कह भी नहीं सकते, ये आपने बोंगी मारी है ना। मैंने कहा ही नहीं ना, मैंने तो आपने मेरे अबाव अजदाद को क्यों कहा कि वो नबी को इज़ा देते थे? मैंने मौलवी साहेब ये जो बात की है, ये हजूर की हदीस के अकॉर्डिंग की है। प्यारे आका मोहम्मद अरबी ने अपनी उम्मत के बिगड़ने का जमाना बताया था, वो जमाने में आपने फरमाया था कि यहूद की सिफात इख्तियार कर जाएंगे। आपके बड़े, इसका मतलब है यहूदी थे? मुझे बता दें फिर, हजूर की जात पर आप बोलो, बात करके दिखाओ।
अभी मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, जवाब दे दीजिए। आपने जो हदीस पढ़ी है ना, इसमें मेरे आबा अजदाद का कहीं भी जिक्र नहीं, ठीक है। अगर मेरे आबा अजदाद ने नबी पाक को इजाज़त दिया है, अगर ये आपकी हदीस मेरे आबा अजदाद पर फिट आती है, तो आपके भी आबा अजदाद पर वैसे ही फिट आनी चाहिए, क्या नहीं आती? चले, कि इसमें उसूल कोई अलग बात अलग नहीं, है। इसमें कोई बात नहीं है, मुझे पता है। मेरी अच्छा, बात सुने, मुझे आप सुने गुस्ताखों की जरा, नस्ल सुने हैं। सुने जरा, सुन ले। मैं आपको बताता हूँ अपना, मैं आपको अपना बताता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, आप तो बुरा मान गए, इसका बुरा मतलब है दिल देखे, में। कोई भी हलाली होगा उसके सामने उसके बावजूद मौलवी आपको साहब, बुरा जब कहा मैंने बोलना जाएगा। हो फिर मुझे बता दें, आप बोल लें पहले। हाँ जी, बोल लें आप पहले, फिर मेरा जवाब भी सुने ना। एक छोटा सा उसूल बस ध्यान में रखें कि जी, कभी जी। भी जो हलाली खून होता है वो कभी भी अपने बाओ-इजाद की इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं करता। आप बस मुझे वो बता दें, वो किताब का हवाला मेरे मुंह पर मार दें, आपने कौन सी कुरान और सुन्नत से, कौन सी अदिल्ला अरबा से इस बात पर कियास किया है कि मेरे बाओ-इजाद ने उनको क्या नाम है इजाज़त दी थी। अगर ठीक मेरे हो बाओ-इजाद ने दी थी, ठीक हो गया। अब मुझे जवाब देने का मौका दें। आखिरी दफा मैं आपको बताता हूँ, हैं? मेरे बाओ-इजाद का सरात मैं से आपको जिक्र होना चाहिए मैं आपके आपको जवाब में। बताता हूँ। अब थोड़ा सा रुक जाए। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको यही समझते हैं कि हम उन्हीं की नस्लों में से हैं सारे। आप नहीं मानते इस बात को? और भाई मुझे जवाब चाहिए, मेरे जो बाओ-इजाद ने जवाब भी तो दे रहा किस हूँ मौका पर तकलीफ दी है, हुदैबिया में दी है या सर। मैंने जो मौलवी साहब, मैंने जो कलाम किया है वो तमसीली था, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। चले, आप देखिए, छोटी बात पर आप लड़ रहे हैं। आप हेलो अपनी मौलवी तमसील साहब, में किसी मेरी बात सुन साहब को लो। गाली देंगे, उनको बुरा भला करेंगे। और भाई गुस्ताखे रसूल मेरी नबी बात को सुन इजाज़त लेना, देना मैं भी सबसे कुछ बड़ी बोल रहा गाली। हूँ। अलामा साहब मेरी भी बात सुन लेना। इनके साथ जी, जो जी, मेरी सुना। बात चली थी इस्लाम के मुतालिक बात चल रही थी कि ये कहते हैं इस्लाम वफात पा चुके हैं, लेकिन जो हमारा जो अकीदा है वो इस्लाम का है कि वो जिंदा आसमान के ऊपर है। और भाई उसके मैं भी ऊपर इसी मैं मौजू बात पर कर बात उसके कर रहा था, उसके लेकिन मेरे बाओ-इजाद पर उसके क्यों हाथ डाला है? उसके मुतालिक बात इनके नहीं हो पास रही है। दलील नहीं है आबिद, इनके पास भी दलील नहीं है मौलवी साहब के और भाई पास। आपने जो दलील के अंबाल लगाए वो मुझे भी पता है, आप मुझे बस इतना सा दलील चलें फिर मौलवी इसी साहब, आए ना, आए कुरान की तरफ आए मेरे भाई, इसी कुरान की बात तरफ पर आए। इसी बात पर अभी फैसला हो जाएगा। मैं भी यहाँ से आपको विनर डिक्लेयर कर दूंगा। हाँ, मुझे नहीं, बस इतना विनर नहीं, मैं बता आपसे दें। नहीं बात सुन, आप हो भी नहीं सकते ना, तो वैसे मैं कह रहा चले हूँ, तो आप ये कह सके। छोड़े जो कुरान और हदीस से वो जो साबित करना है उसके ऊपर बात ओ करना है, भाई उसका नहीं देखिए ना, करना है। मेरे बाओ-इजाद का क्या, जिन्होंने ये बगैर कसूर के इन्होंने चले, गुस्ताख बना दिया है। मुझे बोल दे बस। मैं माफी चाहता हूँ करें। नहीं, तो माफी बात नहीं। किसी ने इन्होंने कराया ना, किताब दिखानी पड़ेगी, कुरान और किताब, हदीस इसके अलावा के आगे नहीं ऊपर बात बढ़ेगी। करनी है यार। नहीं, मौलवी साहब अड़ गए हैं क्योंकि दलील नहीं है मौलवी साहब आपके पास। माजरत के साथ, आप हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, मैं तो आपकी मदद कर रहा था, मैं तो आयत भी आपके लिए पढ़ रहा ओ था, भाई हालांकि होता ऐसा नहीं दलील है। तो मैं माफी दलील मांगता चाहिए, हूँ। दलील। कंटिन्यू करें आगे कम से कम। अच्छा मौलवी साहब, दलील चाहिए हमें भी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपके बुजुर्गान और आप कहते हैं कि वो आसमानों पर हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? ओ भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं आगे कैसे जाऊं? यार मौलवी साहब रोने ना लग जाना पहले तो प्लीज, थोड़ा सा। मौलवी साहब, ये चलो पहले भाई, तो आपने आपको चलो कहा है भाई, कि आप ये जो मैं बात कर रहा हूँ एसएस भाई थोड़ा म्यूट रखो। क्यों ये आपके अबाउट मैंने तो कहा ही नहीं ऐसा कुछ भी, मैंने तो तमसीली कलाम बोला है। अब भाई तमसील के- क्यों, अपनी तमसील में किसी के बाप दादों को गाली देंगे? आपको गुस्सा क्यों लगा है इस बात का? यार जो इल्मी गुफ्तगू के एक मिनट, आपको गुस्सा लगा इस बात का मौलवी साहब? तलत भाई 2 दिन में 2 बोंगियां मारी हैं आपने। कक्कड़ भाई से पूछे कल मेरा। आपको भाई, क्या बात सुने, आप अपनी तमसील में किसी को बुरा भला कहेंगे तो ये आपकी कलमंदी है। नहीं, मैंने तो किसी को बुरा भला नहीं कहा। मैंने कहा कि जो नबी को इजाज़त देने कोई बुरी बात नहीं है आपके नजदीक। अच्छा, आप मिर्जा साहब के मुतालिक भी जो अकीदा रखते हैं वही कुफार मक्का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखते थे। इस जिमन में मेरी बात पूरी होने दो मौलवी साहब, मेरी बात पूरी होने दो। मैंने इस जिमन में बात की है और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत यहूद की सिफात इख्तियार कर जाएगी, तो आप फिर यहूदी माने अपने आप को। हुजूर ने फरमाया है, मेरे प्यारे आका ने, सच्ची बात है। तो इसलिए इस बात में आप आगे बढ़े और दलील पेश करें अगर है कोई दलील। मुझे नहीं लग रहा आपके पास दलील है। अगर तो हजरत ईसा के जाने की दलील आपके पास आसमान पर है तो मोहतरम वो पेश करें, बिस्मिल्लाह। ओ भाई मेरी बात सुने ना, जी जी सुन रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल सी बात कही थी भाई कि मेरे बाओ-अजदाद ने कब और घुमा रहा है, मौलवी घुमा रहा है आप। आज़ादी है। हाँ, वो दलील नहीं है मौलवी साहब के पास, दलील नहीं है मौलवी साहब। सारे लोग नीचे भी लिख रहे हैं यहाँ पे ना,
250 के करीब लोग बैठे हैं। लोगों के निकलने से कोई बदल नहीं जाता। अब हमारा ना मयार हक है। थोड़ा सा आ जाए प्लीज, थोड़ा सा मेन की तरफ आ जाए। अगर देखें, अगर आपके बड़ों ने इज़ा नहीं पहुंचाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपके मेरे बड़ों ने नहीं पहुंचाई, खत्म हो जाएगी बात। भाई किसी बंदे की तरफ ऐसी चीज मंसूब करना जो उसने की ना हो, तो ये क्या है? ये बहुत चले, आपकी अगर मौलवी साहब दिल आजारी हुई है तो मैं होस्ट हूं, मैं बड़ा दिल करके आपसे माजरत कर लेता हूँ इस बात पर, ठीक है? हाँ जी। मैं ठीक है। बात करता हूँ यार, जिस चीज के नहीं लिए अहमद आप, अच्छा ठीक है मौलवी साहब, आपकी दिल आजारी हुई तो मैं आपसे आई एम सॉरी, ठीक है? कोई ऐसी अच्छा ठीक है। अब भाई अब आए मौलवी साहब उस काम की तरफ जिसके लिए आप तशरीफ लाए हैं। एक काम अभी अधूरा है भाईजान, एक काम अभी अधूरा है। अच्छा। वो आदिल हुक्मरान, आपने कहा है आदिल हुक्मरान के वाले से थोड़ा जी, आदिल हुक्मरान का मैं बता देता हूँ। जिस तरह हजरत ईसा आदिल हुक्मरान थे, इसी तरह मिर्जा साहब भी आदिल हुक्मरान है। ठीक है आदिल हुक्मरान, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वो कौन सा बंदा होता है कि जिसके पास हुकूमत ना हो, ज़ाहिरी हुकूमत ना हो, और वो फिर भी हुक्मरान हो? हाँ जी, हजरत ईसा के पास कहीं की हुकूमत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी आदिल हुक्मरान थे। ये कहाँ पर लिखा है हज़रत ईसा आदिल हुक्मरान थे? हजरत ईसा को आप आदिल, उनके जमाने में कौन था आदिल हुक्मरान? हैं जी? उनके जमाने में आदिल हुक्मरान कौन था? आप खुद ही थे। खुद थे ना? तो कौन सी जमीन थी आपके पास? नहीं सर, लिखा हुआ है कहीं पर। काकर भाई रुक दे, नहीं काकर भाई रुक दे, एक मिनट, ठीक है ठीक है, आप बात पूरी करें, ठीक है? जी मेरी बात पूरी है, आपके पास आगे आपको जवाब नहीं है मोहतरम। ये आप ऐसे ही इधर उधर खेल रहे हैं, मेरी आपसे ये दरखास्त है। मेरी खेल नहीं ना, आपने एक बात कही थी, फिर आप कहते हैं मैंने ये बात कही नहीं है। मैंने आदिल हुक्मरान वाली बात कही थी, कायम हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आदिल हुक्मरान थे, आप पहले नहीं मान रहे थे, अब आपने मान लिया है। उनके पास कोई जमीन, कोई हुकूमत नहीं थी। 11 बंदों को छोड़कर वो रुखसत हुए थे, 11 लोगों को छोड़कर। तो फिर भी अल्लाह के सच्चे, पाक, तैयब, सादिक, अमीन नबी थे वो। यार काकड़ भाई थोड़ा सा प्लीज, काइंडली काकड़ भाई क्या कहना चाह रहे, कह लें एक दफा, एक सेकंड। ये दोस्त है सुन्नत की, ठीक है बात चलत भाई सुने। उस वक्त आदिल हुक्मरान ईसा अलैहिस्सलाम अगर कहीं पर आप साबित कर रहे हैं, तो कहीं पर हदीस में, कुरान में लिखा हुआ है कि वो आदिल हुक्मरान थे? नहीं काकड़ भाई, जो नबी होता है ना, वो नबी के जमाने में नबी ही आदिल हुक्मरान होता है। काकड़ भाई अब आप म्यूट कर लें, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बात कर रहे हैं नहीं, इसकी दलील देने के ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर आए आदिल नबी हैं? आप इनकार करें ना इस बात से, इस बात की रिकॉर्डिंग हो रही है मौलवी साहब, तो आप बताएं कि हजरत ईसा। मेरी बात सुने, सवाल पूछना अगर इनकार है तो फिर ये कहाँ पर लिखा है? अगर सवाल पूछेंगे तो इनकार हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपका सवाल है कि आपने ये उसूल बताना है कि उसूल फिक़ह में या उसूल हदीस में ये उसूल कहाँ पर है कि सवाल पूछने से इनकार हो जाता है? नहीं सर, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इनकार, मैं तो जवाब दे रहा हूँ भाई के सवालों के। नहीं भाई ये पूछ रहा है ना कि आपने कहा है ना, मैंने पूछा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर लिखा है कि आदिल हुक्मरान है, आपने कहा कि आप नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि सवाल पूछने पर नहीं, पाबंदी नहीं है। आप पूछे, मेरे से जितने दिल करता है पूछे, मैं सबके जवाब दूंगा। और मुझे लगता है कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देने आए, मैं दे देता हूँ, फिर दे देता हूँ। मैंने आप ही से पूछा था क्या हजरत ईसा के दौर में, बोल सब ऐसे ना लोगों को समझ नहीं आएगी मोहतरम, ऐसे लोगों को समझ नहीं है। करेंगे आप। अच्छा अभी थोड़ा रुक जाए ना, रुक जाए, फिर मुझे बताने देना, या मैं खामोश होता हूँ, आप फिर अकीदा हजरत ईसा के आसमान पर जाने की आयत पढ़ें और पेश करें बिस्मिल्लाह। मैं खामोश होता हूँ, देखना कैसे खामोश होते हैं जी, पढ़े जी। पहले मेरा सवाल ही नहीं पूरा हुआ आदिल हुक्मरान वाला। मैं कर देता हूँ, उसको फिर सुनना पड़ेगा आपको खामोशी के साथ, ठीक है सर? ठीक है जी। मैंने आपने मेरे से पूछा कि मिर्जा आदिल हुक्मरान क्या फरमाया हुजूर ने। मैंने आपको 4 टाइटल बताए, उसमें से था कि वो आदिल हुक्मरान होगा। अब नबी जब आते हैं तो उनके ज़माने में, कोई भी नबी जब आता है तो वो ही अपने ज़माने में आदिल हुक्मरान होता है। मैंने आपसे पूछा कि रसूल खुदा प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कौन आदिल हुक्मरान था? आपने कहा आप खुद थे। इसका मतलब है कि आप आदिल हुक्मरान थे, लेकिन किसी जगह का होना आपके लिए ज़रूरी नहीं था। जब आप आए, कुरान भी आपके पास नहीं था, और आप तब भी आदिल हुक्मरान थे, हम तो ये मानते हैं। फिर उनसे पहले जो गुजरे हुए अंबिया हैं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी पैदाइश से लेकर आप आदिल हुक्मरान थे, हम तो ये मानते हैं भाई। हजरत ईसा के पास एक मकान, एक जगह, एक छोटी सी कोना भी क्यों ना हो, वो आदिल हुक्मरान है। क्यों है कि वो जमाने में आकर जो उनके ऊपर किताब आई है उस पर आदिल हुक्मरान होता है। नबी कोई जमीनें कब्जे करने नहीं आता, ठीक है? इसी तरह और भी अंबिया गुजरे अल्लाह के,
अच्छा जी, फिर आई बात मिर्जा साहब पर। तो मैंने आपको कहा कि हजरत ईसा जिस तरह उनके पास भी कुछ नहीं था, इसी तरह मसीले ईसा पर जो आने वाला उम्मत मोहम्मदिया में है उसके पास भी कुछ नहीं होगा। ये है जी आपके सवाल का जवाब। तो अब काइंडली आ जाए उस तरफ। अभी मेरा अभी यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि कर ले। ये ईसा अलैहिस्सलाम आदिल हुक्मरान है, इसका आप मुझे हवाला दे सकते हैं? आप ऐसा करें कि आप ये इनकार करें कि आप आदिल हुक्मरान नहीं थे, बल्कि आपके दौर में कोई बंदा आदिल और था, आदिल हुक्मरान, उसका नाम बता दें हमें आप। हम तो ये मानते हैं, हमारा ये मान है। देखिए सवाल करने से इनकार लाजिम आता है। नहीं, अब मेरा इसका जवाब ले लें इस बात का। आपने पूछा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मैं आपको लिखा हुआ बताऊं कि वो आदिल हुक्मरान थे। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको इल्म है कि उनके दौर में कौन था आदिल हुक्मरान? इसका तो सवाल से कोई तल्लुक नहीं है, बस आप है ना? मुझसे है। हवाला मांग रहे हो। है। मैं आपसे हवाला मांग रहा हूँ। और भाई नबी के बारे में कुरान करीम में आया है कि वही है तुम में जी कहाँ पर पूरे कुरान। नबी वो कहते हैं कि मैं तस्दीक करने आया हूँ, सूरह सफ में आया 3री आयत में। तस्दीक करने से आदिल हुक्मरान का क्या? हाँ बिल्कुल, वो आदिल हुक्मरान थे। यार आपको तो इतना बुनियादी तौर पर। भाई मेरी बात सुना, बुनियादी का नहीं, मुझे लिखा हुआ चाहिए ना, लिखा हुआ है उससे मैं कह रहा हूँ कि आप इनकार करते हैं इस बात से कि वो आदिल हुक्मरान नहीं थे। आपको ये बात बताना पड़ेगा कि सवाल करने से इनकार लाजिम आता है, ये कायदा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आप इनकार करेंगे तो मैं दलील दूंगा ना। सवाल करने से इनकार करना लाजिम आता है। यार अहमद भाई किसको लाए हो भाई, वो सादा बंदा है ये तो कोई। अहमद भाई आप ही आलिम हैं, आप ही जनाब सब कुछ हैं। अहमद भाई जवाब दे दें। एक मिनट इसको ना क्या गलत भाई लिखा हुआ अगर है तो फिर तो ये बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। अगर हम मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा दूं। बस आप लिखा हुआ हमारे मुंह पर मार दें कि कहाँ पर लिखा हुआ है। लो मार देता हूँ, फिर मैं आपको तजलील करना नहीं चाह रहा था, मारता हूँ अभी। ये लो अभी मारता हूँ, अभी ये रिकॉर्डिंग कर ले इनकी। इन्होंने कहा मेरे मुंह पर मार देते। तजलील कौन सा सीखा है? बताता हूँ कौन सा सीखा। ये ले जी मौलवी साहब, पढ़ लेते हैं, अरबी पढ़ लेंगे। मैं लगाऊं तो अगर जी लगाए वो जी जी मैं लगाता हूँ जी, बताता हूँ। एक सेकंड जरा रुकिएगा, अब आपको बताता हूँ मैं कि कहाँ लिखा पे कि वो आदिल हुक्मरान है। ये लें जी, ये है जी मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका, जो आप दलील मांग रहे थे अब आ गई है। आप फरमाते हैं, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी दलील है, मैं पढ़ता हूँ। आप फरमाते हैं कि ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम इमामन महदियन व हकमन अदलन। हाँ जी, आदिल हुक्मरान लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है, मारी मुंह पे कि नहीं? आदिल हुक्मरान थे, ठीक है। थे नहीं, मुंह पे मारी कि नहीं मारी? मुंह पे लगी? बोलो। नहीं लगी। बोलो, लगी मुंह पे? वहकमन अदलन वयक्सुर सलीबा। ओ बस सही है, ठीक है। लगी कि नहीं लगी मुंह पे? और लगाऊं? मेरी इसी मैं आपको आप अभी बहुत कम छोटे भाइयों मारे, आपके पास वो इल्म नहीं है। ओ भाई जी, अब क्या सवाल है बताओ। एक मिनट मौलवी साहब, एक रुक मिनट तो जाओ यार, रुक तो जाओ यार। काकड़ भाई प्लीज, काकड़ भाई आपने बोले एक मिनट। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था? वो आदिल हुक्मरान कब थे का सीगा था ना, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आदिल हुक्मरान के तौर पर नाजिल होंगे। अरबी में पढ़े जरा, अरबी पढ़ के सुनाए मुझे जरा, अरबी पढ़े। क्या लिखा? अरबी पढ़ो जरा, पढ़ो अरबी जरा। इमामन महदियन व हकमन अदलन। इसका तर्जुमा कर दो, इतने लफ्ज का खुद कर दो। इमाम महदी हिदायत वाले होंगे और हकमन अदलन और आदिल हुक्मरान होंगे। बस और क्या? मुंह पे लगा कि नहीं लगा? देखे ना वहां पर क्या होगा कि होंगे, हैं नहीं है। भाई साहब मौलवी साहब, आपने मुझे कहा कि सैयदना मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मैं बता दूं, तो आपने कहा मुंह पे मार दो, हालांकि मैं आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। तो वजी मुंह पे कि नहीं वजी? ये भाई मेरी बात सुने ना, आपको माज़ी मुज़ारे अमर का नहीं पता। मैंने कहा था कि वो कब हुक्मरान थे। मैं कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर की, आने वाले की पेश गोई है, आने वाले ईसा इब्न मरियम। अच्छा ठीक है। अब ठीक है, अब और तरफ ना खेलो आप। मेरी बात सुनो मौलवी साहब, अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे भाइयों की तरह। मौलवी साहब यार, रिकॉर्डिंग है किसी के पास? ये मौलवी साहब की रिकॉर्डिंग है? इन्होंने माजी का पूछा था, कह रहे हैं किसी ने रिकॉर्ड किए, दोस्त ने। ठीक है, पूछा सुना दे। काकर भाई इन्होंने पूछा था, काकर भाई जोड़े। ओ यार काकड़ भाई तो बोल ही नहीं रहे, काकड़ भाई तो बाद में।
आप अब मौलवी साहब अच्छे भाइयों की तरह, अच्छे प्यारे भाइयों की तरह आ जाए, कम ऑन उधर आ जाए, मेरी बात तो सुने, सुन तो लेना। सही तरह का हदीस दी है, हदीस आने के बाद भी इनकार कर रहे हो। हदीस का ठीक है ना, हम हदीस, मैंने कब कहा कि मैं हदीस का इनकार हूँ? मैंने ये कहा है, आप मुझ पर फिर बता बात है बावजदाद की तरह। मैंने कब कहा है कि मैं हदीस का इनकार भाई आप अच्छा मान रहे हो ना, इसमें वहाकमन अदल के अल्फाज हैं ना अरबी में, वो उसको दोबारा करें, उसको बड़ा करें स्क्रीन को, मैं पढ़ के मैं दोबारा कर दूं? आपने पढ़ा तो है नहीं यार, अब भाई आप पढ़ तो लो प्यारे। ये ले बढ़िया। दोबारा करो। हाँ जी, ठीक हो मौलवी गया। साहब इसने थे बोला था इससे। अच्छा देखें, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अन करीब और थे नहीं थे, अन करीब तुम में हजरत ईसा, इमाम महदी और एक मुनसिफ हुक्मरान। अच्छा, इमाम महदी और है और एक मुनसिफ हुक्मरान और है? नहीं, एक ही बंदे के टाइटल है सारे। फिर और भाई और क्यों आया? देखे ना, मेरे साथ जैद आया और अमर आया है भाई, और तो अलग करने के लिए आता है ना। अच्छा तो क्या है, क्या सवाल क्या है? मैं देता हूँ जवाब देता हूँ, सवाल क्या है? मेरे साथ देखे, हाँ दलील ये है कि मेरे साथ काकर आया और ये पीर अजमल आया और अब्दुल गनी आया, ठीक है? अगर ये तीनों एक ही होते तो फिर मैं और क्यों कहता? अच्छा, अब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। मेरे से आपने पूछा कि मिर्जा साहेब आदिल हुक्मरान थे, मैंने कहा थे। मैंने आपसे पूछा कि हजूर थे, हजूर के दौर में कौन था? आपने फरमाया हजूर खुद थे। इसका मतलब है जो अंबिया हैं, जब हजूर सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदिल हुक्मरान है तो तमाम अंबिया अपने अपने दौर में आदिल हुक्मरान थे। इसकी आपने कहा कोई हदीस से सबूत दे दें, मैंने कहा मैं हदीस से सबूत दे देता हूं। आपने कहा मुंह पे मार दें, मैंने कहा मैं ये लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं करता। मैंने हदीस आपके सामने रख दी है, इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइटल क्या है, वो इमामन महदीयन है और आदिल हुक्मरान है, वहकमन अदलन है। अब हजूर से बढ़कर मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक कीड़ा हूँ, कुछ नहीं। ये ठीक हो। अब हमें ये बताएं, अब आप आए यार, आ जाए थोड़ा सा। और ये देखे ना, ये दो शख्सियत अलग अलग है ना, इमाम महदी और है और एक मुंसिफ हुक्मरान और है। ये आप बताएं एक है या अलग अलग है? अच्छा, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ भाई साहब। आप इधर पूछने आए हो, पता लग गया सारों को। मेरे से आप खुल के 100 सवाल कर लो, मैं दे देता हूँ जवाब। इसका जवाब दे देता हूँ। आपने मेरे से ये 7वां सवाल किया है, मेरे एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। मैं बाद में दूंगा, पहले दूंगा, मैं होस्ट हूँ, मेरा दिल बड़ा है जी। ये जो हदीस है, ये एक ही शख्स के मुतल्लिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अरबी के अल्फाज आप जानते हैं, लोगों को कईयों को पता है, यहाँ पर सारी गोबियाँ नहीं बैठी। फरमाया ईसा इब्ने मरियम इमामन महदीयन, और नहीं है। ये इनकी सिफत है, ये इनकी सिफत है, ये इमामन महदीयन ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत है। फिर आगे वाओ आतफा आता है, वो कहता है वह हक्कमन अदलन और एक आदिल हुक्मरान, और आदिल हुक्मरान की तरह होंगे। यानी कि ये आदिल हुक्मरान की हदीसें और भी हैं सर, बहुत सारी हदीसों में। नहीं, आपने बताना है की तरह ये आपने कहाँ से तर्जुमा किया? की तरह कहाँ से किया? चले की तरह तो आप काट लें, बेशक की तरह काट लें। पीछे क्यों हट रहे? की अच्छा, तरह आपने भी की तरह काट लें मौलवी साहब, की तरह काट लें। मैं कह रहा हूँ आपने कहा है कि अभी की तरह बताया ना कि यार, आपको लोग देख रहे हैं, लोग आपके मुतालिक तज्जियात निकाल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। भाई मुझे लोगों से कुछ गर्ज नहीं है, मुझे हक से गर्ज है, ठीक है ना? मुझे आप बता दें कि ये जो आपने कहा है की तरह, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, किसका तर्जुमा की तरह यहाँ पर है? मैं आपको ना यार भाई म्यूट रखें भाई, मैं आपको लिया ऊपर, बैठे आराम से जी। की तरह कहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इस पर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? की तरह का नहीं, आप की तरह नहीं मान रहे, आप की तरह नहीं मान रहे। और भाई मैं कह रहा हूँ, आपने जो तर्जुमा किया की तरह, ये किस लफ्ज से किया है आपने? मैं आपको दोबारा एक दफा तर्जुमा कर देता हूँ। ये मैं बुखारी से दिखा दूं, तर्जुमे की इजाजत नहीं है मुझे, बुखारी से दिखा दूं, मैं आपको बुखारी से दिखा दूं। भाई इसी पर बात होगी, आगे नहीं जाएगी। हाय अल्लाह मौलवी साहब, आप कुछ चौथी दफा मेरे से कुछ 6वां 7वां सवाल करके और आप इधर उधर घूम रहे हैं। आप मुझे सवालों की तादाद बता कर आप मौलवी साहब इधर क्यों आए थे, पता है आपको? मौलवी साहब आप इधर क्यों तशरीफ लाए थे, पता है? घुमाने आया। और भाई की तरह आपने अभी ब्लंडर मारा है। चले वो आप ऐसा करें, की तरह नहीं मानते आप, इसको लंबा करें ना, नहीं मानते आप। मेरी बात तो सुने मौलवी साहब, क्यों छोटा करते हैं? आराम से मौलवी साहब, गुस्सा ना करें। आप तो गुस्सा बड़ा कर रहे हैं यार, कभी किधर कभी किधर जा रहे हो, एक जगह बैठ जाओ।
बात तो ये जो सुनो। हदीस पाक है इसको लंबा करता अच्छा है, करता हूं इसको लंबा। आप की तरह नहीं मानते? नहीं आप नहीं, मेरा आप सवाल नहीं समझे। मैंने कहा कि हाँ। आपने जो की तरह जो तर्जुमा किया नहीं, ये किस लफ्ज का किया है? कौन सा की तरह? कहाँ पे लिखा है की तरह? मुझे बताएं जरा। आपने किया, आपने नहीं किया। कहाँ पे है? मैंने कहाँ पे किया है? मैं तो पढ़ के अरबी में कर देता हूँ। क्या कहाँ पे मैंने किया है? नहीं, कहाँ पे है? की तरह का, कहाँ पे? एक मिनट यार, मैं बड़ी करता हूँ, मैं बड़ी करता हूँ। अच्छा मैं बड़ी करता हूँ, कहाँ लिखा है की तरह? नहीं, बताओ। बड़ी की जरूरत नहीं है हमें। आपने चाहिए कहा कि- लंबा करो इसको, अब कहाँ लिखा है की तरह? बताओ बोले साहब। आपने तर्जुमा किया था। कहाँ पे? और- कहाँ पे है? कहाँ पे किया हुआ है इस हदीस में? की तरह अच्छा, कहाँ आपने लिखा है? नहीं किया, आपने नहीं किया की तर्जुमा। की तरह कहाँ लिखा है? बता दो। मैं यहाँ पर नहीं लिखा, आपने किया था तर्जुमा इसका। नहीं मैंने तो नहीं यार। क्या कह रहे हो? कभी कह रहे हो उसको लंबा करो, कभी मैं इधर लिखा है, कभी कहते हो मैंने कहा था। आपने की तरह का तर्जुमा किया है। मैं आपको मौलवी साहब दोबारा बता देता मैं हूँ। खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खा के कहता हूँ कि आपने की तरह का तर्जुमा किया है। नहीं मैंने नहीं। मौलवी साहब आपको गलती लग रही है, अल्लाह ताला माफ करे आपको। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। इसको लंबा क्यों करवा रहे थे आप? इसको अच्छा इसको लंबा क्यों करवा रहे थे? इसको लंबा क्यों करवाया आपने कि लंबा करें इसको? ये था कि बाकायदा तौर पर दिखाई दे सके। हाँ आपने इसलिए कहा था कि यहाँ लिखा है की तरह, यहाँ नहीं लिखा कहीं भी की तरह। चले मौलवी साहब अच्छे बच्चों की तरह ना मेरी बात सुने। ऐसे क्या यार, टाइम आपने घंटा जाया कर दिया। अहमद, ओए अहमद, घंटे से कोई गर्ज मेरे नहीं है मुझे। ये भाई सादा भाई है यार, तुम जिस भाई को लाए हो। अहमद मेरी बात सुने ना, मेरी बात एक मिनट जरा, जो बंदा लाया मैं उसको जरा बात कर लूं। एक मिनट ओ सर, एक भाई, मिनट मेरी बात सर सुनो। मौलवी साहब की एक मिनट। तरह का तर्जुमा आपने अहमद, किया है तो किसकी वजह से किया है? मैंने कोई की तरह का तर्जुमा नहीं किया, मैंने तो हदीस से पढ़ा है। आप कसम उठाएं, कहें कि मैंने मैं कसम उठाता हूँ मैंने नहीं किया भाई। अगर गलती से मुंह से निकल भी गया भाई, तो नहीं गलती से किया नहीं, आप मैंने नहीं उसको किया। पढ़े थे, आपने- सुने आप पढ़े थे, सुने, आप पढ़े थे। मैंने कहा था ईसा इब्न मरियम इमामन महदीयन व हकमन अदलन। ईसा इब्न मरियम इमाम महदी और आदिल हुक्मरान होंगे, ये था। नहीं आपने कहा की तरह है भाई। नहीं आपको गलती लग रही है बोल साहब, गलती लग रही है, गलती लग रही है यार। प्लीज खड़ी करें एक मिनट। गलती प्लीज, तो आप- आपसे भी हो सकती है भाई। हाँ चले कोई बात नहीं, आपको गलती लग रही है। मैं इस पे आपको क्या, इसमें छोटी बातों पर बहस आप कर रहे हैं। क्यों नहीं गलती मान रहे? आप क्यों नहीं गलती मान रहे? अच्छा चले मौलवी साहब, असल बात की तरफ आना है कि नहीं आना आपने? आपसे गलती नहीं हो सकती। अच्छा अब आपने मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, पता नहीं कौन है आप? आपने मेरी बात सुने। यार मानी भी रहने दो ये। आदिल हुक्मरान पर इसका आपने- जवाब है, ये जो इतराज करे उसका जवाब है इसका। नहीं वो तो ये मानते ही नहीं, वो और ये लंबा जवाब खोल नहीं देगा। है, मैंने मानी भी कहा मैं है समझ कि गया। इन्होंने की तरह का तर्जुमा किया है, वो किस वजह अहमद से भाई, किया? अच्छा एक मिनट मौलवी साहब जरा म्यूट करें। अहमद साहब, ओ अहमद, अहमद, अहमद भाई, देश के मौलवी साहब की स्क्रीन पर दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। अहमद साहेब। आप कहाँ पर रहते हैं तलत साहब? आप कहाँ पर रहते हैं? यार मैं इधर ही रहता हूँ मोहतरम। आप उधर कुरान की तरफ। रहते हैं? मैं पाकिस्तान भी होता हूँ, जर्मनी भी होता हूँ। नहीं अभी आप देखें ना, अभी मैं पाकिस्तान में और हमारे बज रहे हैं 12 बज के। अच्छा आप थोड़ा सा कहीं एक जगह बैठ जाए, मैं आपको याद थोड़ा सा हमें वो दलील दे दे। वो आयत आपने जो पढ़ी थी सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 157 बताकर आप थोड़ा पीछे हट गए थे, वो जरा पढ़ दें आप मौलवी साहब। पीछे हटे, मैं अभी बता देता हूँ। अभी आप बस बता दें कि की तरह का तर्जुमा आपने की तरह मैंने लफ्ज बोला ही नहीं, मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा कर रहा हूँ मोहतरम मौलवी साहब। अच्छा चल ठीक है, उस हदीस को बड़ा करके लगाएं। ठीक है, लगाओ, फिर लगाएं पड़। लगाओ यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। और भाई किस लिए आए हो? ये मौलवी साहब आए क्यों थे मुझे ये बताओ। अलामा साहब हमारे असल में ना बात ये कि आप लोग कंप्यूटर कोई अलामा साहब नहीं है, वो सादे बंदे हैं मेरे सामने। भाई ठीक है, आप ही पढ़ें, हम मेरे साथ में बंदे। ठीक है, अच्छा मौलवी साहब, आपके आने का मकसद वो बताता है अहमद, वो पूरा करें सर। जी अहमद। भाईजान, मैं भाई आया था वो जो इस्लाम आप लोग कहते हैं कि वफात पा चुके हैं, हमारा अकीदा था आसमान के ऊपर जिंदा है। तो बताओ अपने मौलवी साहब को, वो जिंदा साबित करने आए हैं आसमान पर, बताओ उनको। और भाई हम साबित करेंगे ना। आप बस पहले आपने हदीस, अगर आप सच्चे थे तो फिर आपने हदीस क्यों उठा दिया? वो ठीक, हाँ, पर गिरफ्त हो गया। सच्ची तो क्यों उठाई हदीस, बताओ। यार मौलवी साहब हदीस दोबारा लगा देता हूँ, मैं दोबारा पढ़ भी देता हूँ। मेरे भाई मौलवी साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, सामने थोड़ा नीचे कर लें कैमरा, थोड़ा नीचे कर लें कैमरा, हल्का सा पंखा ऊपर से, पंखा हमने क्या करना है। अच्छा बात यह है कि आप आए हैं इधर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का, वो नहीं है, पता नहीं कोई है बात, किस वजह कोई बात भाई हैं आप हमारे, हम सारा बताएंगे आपको। वो आयत जरा दोबारा पढ़ें, वो जो आपने पढ़ी थी, तो जरा थोड़ा सा आ जाए। कम ऑन प्लीज।
اختتام پر پہنچیے، وہاں پر آئے نا کی طرح کہ آپ نے ترجمہ کہاں پر سر وہ حضرت عیسیٰ پھر آسمان پر جانے کا عقیدہ احمد پھر کہ یہ سمجھے کہ نہیں ہے کہیں پر، یہ سمجھے بچے اہل سنت کے بہت سارے لوگ نیچے بیٹھے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پھر نہیں ہے، مولوی صاحب ادھر ادھر کھیل رہے ہیں۔ تو محترم پڑھیں، پھر آیت پڑھیں، مہربانی آپ کی، تھوڑا ٹائم بچائیں۔ آپ نے وہ جو حدیث لگائی ہے نا وہ دوبارہ لگا دیں ذرا پھر ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی۔ ہاں جی یار وہ ٹائم بچائیں نا، پھر وہ 20 لگائیں گے ٹائم اس پہ ضائع ہوگا۔ 35 منٹ ہو گیا، مولوی صاحب گھمانے آئے ہیں۔ اچھا آرام سے ایک جگہ بیٹھ تو جائیں مولوی صاحب، آپ اچھے بھائی میں ہیں۔ کہہ رہا ہوں آپ کا 4 سے 5 گھنٹے کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی سوری معذرت، وہ میں تھوڑا مصروف تھا، کام سے آیا تو پھر تھوڑا مصروف ہم بھی ہوتے مصروفیت ہیں، تھی۔ لیکن آپ دیکھیں نا ہم نے ابھی صبح یار جانا ہم نے بھی ہے۔ پنکھا نہیں دیکھنا آپ کا، تھوڑا ایسے۔ ہاں اب آپ او محترم بھائی کون دکھا پلیز رہا ہے پنکھا؟ پلیز آپ پلیز خود سے پلیز۔ کیا سرائیاں کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا آپ کو چھوڑو، کیسے آ پتہ جائیں ہوگا آ کہ جائیں آ جائیں، میری بات تو سنیں مولوی صاحب، قرآن کی طرف آئیں، وہ آیت پڑھیں، وہ علی حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کی، اگر ہے پانی بھی پی لیں، اگر کوئی ہے تو پڑھ دیں، مہربانی آپ کی، وہ نیچے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ جی بھائی وہ بسم اللہ۔ حدیث آپ نے کیوں اٹھائی ہے؟ حدیث کے وہ لگائیں ذرا۔ میں وہ بھی بات بعد میں آپ کی وہ بھی پوری کر دوں گا بات مولوی صاحب۔ او بھائی آپ اب ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچے ہیں تو ابھی کیوں نہیں؟ آیت ہے آپ کے پاس کوئی؟ آپ سچے ہیں اس معاملے میں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر، آپ سچے ہیں اس معاملے میں؟ اے تو وہی گل ہوگی، اگے نہیں۔ دور تو پیچھے چھوڑ، اے تو پھر نہیں۔ نہیں بات تو سنیں، آپ اس لیے ادھر کیوں آئے تھے آپ کو پتا ہے؟ وہ مجھے آپ نہ بتائیں، مجھے آپ بار بار اس بات کی مجھے بتائیں نا آپ- کہ وہ آپ کام کو- کرے اس پر عادل حکمران میں آپ پھنس گئے ہیں بھائی، آپ عادل حکمران میں احمد پھنس گئے ہیں۔ احمد آپ بولو یار، احمد آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علماء علامہ صاحب آئیں گے، وہ آ کے ثابت کریں گے، کہاں پر ہے وہ آیت؟ بتا دیں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، یقین کریں یار خدا کی اور قسم۔ بھی نیچے کنفیوز اہل سنت کے بچے ہو رہے ہیں، تو علامہ صاحب وہ آیت پڑھیں جی۔ میں آپ کو لے کر آیا تھا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا علم ہے تبھی میں آپ کو لے کر آیا تھا، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے ادھر لانے کی؟ پڑھیں آیت، پھر پڑھیں بسم اللہ علامہ صاحب۔ یہ حدیث نہیں لگائیں گے تو ہم بھی آیت نہیں پڑھیں گے، پہلے حدیث پر بات ہوگی۔ وہ حدیث لگائی تو تھی انہوں نے ابھی میں نے وہی نا ابھی بات پوری نہیں تھی، یہ ختم ہو پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، میں دوبارہ دوبارہ لگا لگا دیتا دو ہوں۔ یار۔ اچھا آپ ہمارے سے وعدہ کر رہے ہیں علامہ صاحب، وعدہ کریں گے کہ حدیث کے بعد میں لگاؤں گا، اس کے اوپر آپ کا ایک سوال کا جواب دوں گا میں، اس کے بعد آپ وعدہ کرتے ہیں آیت پڑھیں گے؟ جب میری جو ہے نا وہ دل مطمئن ہوگا اس حدیث کے والے سے پھر علامہ یار یہ صاحب تو کو علامہ صاحب کو ان کی ماں کی قسم ہے لگائیں گے، آپ لگاؤ حدیث۔ نہیں یہ آپ اپنی طرف سے قسمیں نہیں ڈال سکتے، میرا جب دل نہیں، مطمئن ہوگا۔ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کا ہی بھائی کہہ رہا ہے، یہ آپ کا بھائی کہہ رہا ہے بھائی، وہ آپ نے لے کر آیا ہے۔ احمد میں قسم دے رہا ہوں، کوئی بات احمد بڑکیں بہت ماری تھی آپ نے کہ ہمارے علامہ صاحب آ رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں جناب، آ کر تو حضرت عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن سے آسمان پر جانے کا عقیدہ ثابت کر دیں گے، نعرے لگا رہے تھے، آتے ساتھ بھی تم نے بڑکیں ماری ہیں، تو مولوی صاحب تو ادھر ادھر کھیل رہے ہیں۔ ختم نبوت واہ جی زندہ واہ، باد۔ بہت صحیح ہاں بس اندازہ اتنا لگا۔ نعرہ لگائی جاؤ کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور واقعی زندہ باد ہے۔ وہ کہہ رہے مولوی مجھے صاحب، مطمئن کرو گے تو پھر میں کروں گا۔ ابو جہل مولوی صاحب، نہیں ہوا تھا وہ بھائی۔ لگا لیں حدیث، لگا دیں، وہ مولوی صاحب جو ہے نا چلے میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، میں دوبارہ مولوی صاحب کے دوبارہ حدیث لا ساڈی فرمائش تھے لگا دیتے ہیں جی۔ لگا دو یار حدیث۔ مولوی صاحب لگا دو۔ کیمرہ بند ہو گیا ہے، کیمرہ بند ہو اور گیا، وہ آئی ٹی خود ہی گرے گا ہمیں کیا اس سے؟ یہ لیں جی مولوی صاحب آ جائیں۔ علامہ صاحب کیمرہ بند ہو گیا، آپ ٹھیک ہے؟ علامہ صاحب ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران ہیں، اور یہ آپ نے کہا تھا کہ یہ دونوں شخصیات ایک ہیں، جبکہ وہ نے کہا واو عطفہ کا ہے، یہاں پر جو ہے نا یہ دونوں شخصیات ایک نہیں ہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، منہ سے بولے نا، آپ ہاں جی، الگ ہاں الگ جی۔ مانتے ہیں، الگ الگ یہ مانتے ہیں؟ آپ ایک ٹھیک مانتے ہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر آپ دو الگ الگ مانتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا؟ نہیں جھگڑا اس بات پر ہے کہ آپ نے ہمیں اس حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل نبی ہیں، عادل حکمران ہیں، عادل اچھا حکمران ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عادل حکمران نہیں تھے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ سوال سے انکار لازم نہیں آتا، یہ میں بہت انکار کریں گے تو دلیل آتی ہے نا سر، انکار آپ کا لازم ہونا چاہیے نا، آپ انکار کریں گے تو دلیل دوں گا نا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ انکار کریں دلیل آئے؟ اچھا کون سا یہ اصول ہے؟ جو نہیں، حدیث یہ ہے، اصول کون سا ہے؟ اصول یہ کون سا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں ثابت کر رہا ہوں نا۔ جی ثابت کریں، یہ آپ نے یہ جی اصول کہاں سے وضع اچھا، کیا ہے؟ یہ جو انکار کریں تو دلیل آئے گی۔ آپ نے مولوی صاحب سن کے چلیں بات، اب یہ بات میں دوسرے جو نئے ایڈ ہوئے لوگ ان کو بتاتا چلوں، مولوی صاحب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی، یہ ادھر تشریف لائے تھے حیات مسیح کو، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر جانے کا عقیدہ، یہ جو اہل سنت یا دوسرے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر،
तो दलील इनके पास कोई नहीं है, अभी इधर उधर खेल रहे हैं। मैं फिर बताता हूँ। इन्होंने पूछा मिर्जा साहब के क्या क्या दावी हैं, मैंने बता दिए। अब इनमें से एक दावा बताया मैंने कि आदिल हुक्मरान होंगे। इन्होंने कहा जी आदिल हुक्मरान, अच्छा जी उनके पास तो कुछ जगह होती है, कोई फ्लैट होते हैं, कोई इलाका होता है, कब्जा होता है। मैंने कहा मौलवी साहब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन था आदिल हुक्मरान? कहते हैं आप खुद थे। अब यहाँ से दलील निकली कि हर नबी जो है वो अपने दौर में आदिल हुक्मरान होता है। अब मैंने इनको और अंबिया से भी समझाई बातें। अब इन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आदिल हुक्मरान है, इसका सबूत हदीस मेरे मुंह पर मारें। मैंने कहा यार मुंह पे मारने वाला तो मैं, आप मेरे पास आए हो भाइयों, मैं आपको नहीं कह सकता। मैंने कहा जी अब हदीस लगाऊं? इन्होंने कहा लगाओ। मैंने हदीस लगाई जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग देख सकते हैं, वो पढ़ लें। फिर ये मेरे ना लफ्जों को मेरे तरफ वो लफ्ज मंसूब कर रहे थे जो मैंने कही नहीं। मैंने तो अरबी के लफ्ज पढ़ के कि ईसा इब्न मरियमा इमामन महदीयन व हकमन अदलन, ये रसूल के प्यारे। और आपके दरमियान आदिल है, गवाह है, वो जानता है कि किसने किसकी तरफ वो अल्फाज मंसूब किए जो उसने कहे नहीं। ठीक है, अच्छा अभी इसमें क्या रह गया आपका बोल साहब? अभी छोटी किसने कहा? इसमें एक रह गया है कि ओ फिर हदीस आपने गायब कर दिया। चले बताएं, मैं यार इधर ये गायब नहीं हुई, बताएं आप क्या सवाल है? बड़ा बड़ा करो ताकि मुझे भाई कर देते हैं बड़ा। आप सवाल करें, क्या सवाल है आपका? मैं देता हूँ जवाब। उसको बड़ा करें फिर मैं देता हूं। सवाल क्या है अब आपका? वो सवाल आपका खत्म हो गया कि मेरे मुंह पे मारो हदीस जिसमें आदिल हुक्मरान लिखा है, वो खत्म होगी बात आपकी। बड़ा करो ना, फिर हदीस पर अभी बात पूरी नहीं हुई। लो जी बड़ा कर देते। लो जी ये ले जी, अब इसमें क्या सवाल है आपका? ठीक हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि आपने कहा, आपने ये साबित करना था कि ईसा अलैहिस्सलाम आदिल हैं, आदिल हुक्मरान हैं। ठीक हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमाम महदियन को इमाम महदी होंगे, वह हकमन आदिलन। ठीक है ना? वहकमन अदलन, आदलन, और वह एक आदिल हुक्मरान होंगे और एक ठीक है मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ तो क्या पर एतराज ये क्या? इमाम महदियन ये अलग बंदा है और हकमन अदलन ये अलग बंदा है। ठीक है, वो कैसे पता चला आपको? जी वो कैसे पता चला? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे पता चला। अगर देखे ना यहाँ पर अगर एक ही बंदा होता तो फिर और नहीं आता। अच्छा, और कहाँ पे आ रहा है? किसका मतलब है और? ये देखे ना, इमाम महदी और एक अरबी में पढ़ो जरा, अरबी में पढ़ो और बताओ कहाँ पर है। वाव है, वह हकमन अदलन से पहले जो वाव है ना उसका तर्जुमा और है। इमामन महदीयन व हकमन अदलन और आदिल हुक्मरान। ठीक है, अब बात सुनो मेरी गौर से जरा। सुन ले। ईसा इब्न मरियमा इमामन, ये इकट्ठा फिक्र है सारा। ईसा इब्न मरियमा इमामन महदीयन व हकमन अदलन, कि ईसा इब्न मरियम इमामन महदीयन होंगे। हजरत ईसा को आप इमाम महदी नहीं मानते? पूरी बात पूरी करें ना। मैं पूछ रहा हूं, वो इसका इनकार करो। मानते हो आदिल उनको इमामन महदीयन के नहीं मानते? आप बात पूरी करेंगे फिर हम जवाब देंगे। पूरी है भाई, इतनी पूरी है। आदिल हुक्मरान मानते हो कि नहीं? बात पूरी होगी, हकमन बात इस तरह नहीं। जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं दोस्त प्यारे। तो फिर जवाब मिलेगा। हदीस बड़ी हो गई है ना, लंबी कर दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम इमामन महदीयन थे कि नहीं, हैं कि नहीं? बताओ बोलो भाई। बात पूरी हो, हतमन अदलन पे जाएंगे तो हम जवाब चाहूंगा। उधर भी जा रहा हूँ आगे। पहली फिर की आपने इधर फंसाई थी, अब आप आगे जा रहे हो। इधर मुझे बताओ ताकि आगे चलें फिर। जी बोलो। फिर की वाव पर फंसी हुई है और जाएंगे। वाव पर भी जा रहा हूँ, पहले ये पहला जो फिक्र बीच में है उसको छोड़ दे। ये मेरी बैटरी, ये कौन सा तरीका है? बैटरी कम रह गई मेरी। बैटरी तो पूरी कर लें, चार्जिंग पे लगा लें। मौलवी साहब आज आपने हयात मसीह का अकीदा इधर साबित करके जाना है, इधर उधर खेल के जा रहे हो यार, और इधर भी फंस रहे हो। अब बताओ, मुझे तर्जुमा नहीं हो रहा आपसे। ये लो जी, आपके ये मौलवी साहब हैं, मैंने इनसे बड़े प्यार से गुफ्तगू शुरू की, इन्होंने आवाज ऊंची कर ली। मैं माइक भी नहीं लगाया हुआ था। मैंने कहा यार चलो सादा बंदा है। आपने आयत भी आके गलत पढ़ी, फिर आप बैक जाते रहे। अब आपको समझ आ गई कि आपने आयत गलत पढ़ दी है। गलत आयत पढ़ने के बाद आप अब दोबारा उस आयत को नहीं पढ़ रहे। मैं नहीं पकड़ता आपको, आप ऊपर से देख के पढ़ ले। कुरान पाक आपके पास है, ऊपर कुरान पाक पकड़ लो अपने पास, ऊपर से देख के पढ़ दो। अब मैं आपसे इस हदीस को लंबा करो, इस हदीस को लंबा करो, ये लंबी पड़ी है। अब बताओ मुझे, आपने कहा मैं मुंह पे मारो, मैंने लगा दी है। मैं मुंह पे मारने का कायल नहीं, इज्जत से बात, आपको इज्जत तकरीम दी। अब आपने कहा जी इसको दोबारा करो जी, मैंने दोबारा लगा दी। अब आपने इसमें से कौन सा मुझे तीर मारना है, मारो। मैं कह रहा हूं कि ईसा इब्न मरियम इमामन महदीयन, कि ईसा इब्न मरियम इमामन महदीयन होंगे। आप इनकार करो,
अब मैं जुर्रत देखता हूं आपकी कि आप इनकार करो कि वो इमाम महदी नहीं होंगे, इनकार करो, मैं देख लेता हूं। अहले ये तो सुन्नत के तुम इनकार है ही नहीं है, हमारा इनकार है ही नहीं है, तो क्या इनकार? आगे चलो। अब ईसा इब्न मरियम इमाम महदी, ईसा इब्न मरियम इमाम महदी, ठीक हो गया, वही इमाम महदी होंगे, कोई इनकार है ही नहीं है। अब मुकर ना जाना इस बात से। आगे क्या है जी? वहकमन अदलन, आगे उनकी जो सिफात है वो शुरू हो रही है बाकी की भी। वहकमन अदलन, और आदिल उकबरान होंगे, वह यकसर सलीबा, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया को मौकूफ करेंगे, उनके जमाने में जंगें मौकूफ हो जाएंगी, हैं? ठीक है। तो क्या चीज चाहिए? और कितना बड़ा करूं इस स्क्रीन को, फुल बड़ी कर दूं? क्या क्या निकालना था इसमें से आपने? अच्छा मैं निकालता हूँ ना अभी, ठीक है ना? हाँ निकालो, अब बताओ, अब बताओ। ठीक है, अब वो फरमाएंगे, ठीक है? यार साहब साहब लिखा हुआ, हदीस लिखी हुई, यार आगे भी चले यार, बात वही पे पहुंची हुई है। अब मौलवी साहब छोटी करके तो आ जाओ कुरान की दलील की तरफ। मैं यहीं पर मौकूफ करूंगा। अभी मैंने दीगर मामलात भी करने हैं, ठीक है? बच्चों को भी पढ़ाना है अभी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखिए मेरी वकुल बात, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। मुझे कौन से बच्चों को पढ़ाना है भाई? रात को 12 बजे केड़े बच्चे भाई, रात केड़े दफ्तर लगते मौलवी साहब? हर मुल्क में एक ही टाइम होता है, एक ही टाइम होता है, मुझे बता देता नहीं आपकी तरफ फजर का टाइम होने वाला मेरा ख्याल है मौलवी साहब, नहीं, कोई नहीं, ऐसी नहीं। बात नहीं। अच्छा मेरे से वादा करें एक, चले कोई बात नहीं। देखिए हमारी थोड़ी बात थोड़ी ऊंची नीची हुई है, आप बहुत अच्छे भाई हैं, मैं आपसे प्यार से हम कर लेते हैं बात, कोई बात नहीं। ना मैं आपसे जीतना चाहता हूँ, ना मैं आपको हराना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं। आप नेक्स्ट टाइम भी आएँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कल भी आएँ, कल आप आ जाएं, सारा दिन के वक्त आ जाएं, इशा के बाद आ जाएं, कल मैं इंशाल्लाह। तलत भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा ना, जी 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 नादर भाई, हमने अभी यार गुस्सा ना करना आप। जी नादर भाई 4 करेंगे से 5 घंटे इंतजार किया, ठीक है ना भाई? ऐसी बात नहीं, 4 से 5 घंटे को कम नहीं होते। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब किधर जा रहे हैं? भाई मैंने 5 घंटे इंतजार किया, अभी मैं जा रहा हूँ बच्चे पढ़ाने। कहाँ जा रहे हैं? बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चे। तलत भाई जरा माइक म्यूट करें जरा। हाँ जी। बच्चे कहाँ पढ़ाते हो मौलवी साहब? हाँ जी, यूके में। हाँ, यूके में ऑनलाइन पढ़ाते हो? जी अच्छा चले ठीक है, वो तो दीन का काम है, तो ये भी तो दीन का काम है, इधर भी तो पढ़ाए ना लोगों को। मेरी बात सुने ना, 5 घंटे इंतजार किया है, 5 घंटे के बाद अभी दीगर मामलात भी होते हैं ना, एक काम के लिए सब कुछ नहीं छोड़ा जाता। अच्छा तो 5 घंटे क्या, कब आपका डिसाइड हुआ था आने का? मुझे ये जो है ना, ये जो अजमल रज़ा कादरी साहब डीपी लगी है, इन्होंने कहा था कि 8 बजे आना है, ठीक है? तो मैं 8 बजे का वहाँ पर रेडी था, मेरा भी मैसेज उनके पास है। वो मैच लगा हुआ था ना, मैच भी तो देख रहे थे ये लोग। भाई मेरी बात सुने ना, मैं भी पाकिस्तानी तो- हूँ, मुझे मैच देखने का दिल करता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो वो मैच के बाद ही बच्चों को पढ़ाने का क्या टाइम है आपका? मुख्तलिफ टाइम है। नहीं अभी जो आप जा रहे हैं यूके में, तो वो क्या टाइम है आपका बच्चों को पढ़ाने का? अभी हमारा ये ना 12:47 है ना, हाँ, तो इस वक्त भी पढ़ाते हैं। इस टाइम पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत कभी आगे पीछे नहीं हो सकता? देखिए मेरी बात सुने ना भाई, ये ऐसी बात आप नहीं कर सकते, ये मेरा मामला है, मैं जिस टाइम मर्जी पढ़ाऊँ। अलामा साहब ये मुझसे बढ़कर काम है खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना, पता है? तो ये बच्चों को हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई आधे घंटे की बात नहीं है। तो कुर्बान हमारी आधे घंटा तो आप देखें ना, मैंने अगर टाइम कम दिया हो तो मैं मुजरिम हूँ, ठीक है ना? अभी मेरे पास और भी फ़राइज़ हैं, हुकूक फ़राइज़ हैं, तो उनमें मैं कोताही नहीं कर सकता, ठीक है? चलें ठीक है, लेकिन ठीक है 12:42 बता रहे हैं, 12:47 यूके में 12:47 तो नहीं है। अलामा साहब ये बताएं, मैं पाकिस्तान का कह रहा हूँ। अलामा साहब बात ये है कि इनके साथ जो इनको हल्का नहीं लेना, किधर गए? वो चला गया छोड़ के। इसने कहा मैं यूके में हूँ, अब कह रहा है मैं तलत पाकिस्तान भाई